Exercise 10.2 of circles. Before we start this exercise, draw one concept and keep it safely. It will help you a lot. That in case of a circle which has two tangents, and tangents are generally extended like this, so make sure you extend your tangents. The center of the circle. So P is an exterior point from which PA and PB are two tangents. OA and OB are radius. And center and the exterior point can be connected directly like this. तो ये फिगर में क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, एंगल A is 90. Very important. Highlight it and remember it. Angle B is 90 because radius and tangent are always perpendicular to each other. ये जो एंगल है और ये सेम होता है. So basically OP bisects angle AOB. फिर ये जो छोटा एंगल है और ये भी सेम है. So OP bisects angle APB also. And angle AOB plus APB is 180. मतलब दो रेडियस के बीच का एंगल और दो टेंजेंट के बीच का एंगल का टोटल 180 होता है. इफ यू कैन रिमेंबर दिस मच. प्लस पाइथा तो है ही, 90 डिग्री है मतलब पाइथा पॉसिबल है. इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे सम्स आएंगे. सो रिमेंबर दिस फिगर. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24. सर्कल, tangent, second tangent, radius, straight line. From a point Q, the length of the tangent of the circle is 24 and the distance of Q from the center is 25. तो Q actually यहाँ पे है, center यहाँ पे है और ये 25 and this is 90. तो Q बाहर का एक पॉइंट है और Q से 24 सेंटीमीटर का टेंजेंट है. Q और सेंटर का 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. फाइंड द रेडियस. ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई पाइथागोरस थियरम एंड आंसर इज 7. बिकॉज 90 डिग्री में 90 डिग्री के सामने हाइपो इज 25, वन ऑफ द साइड्स इज 24. डू पाइथा, answer is 7. What is the radius of the circle? In the figure, TP TQ are two tangents to the circle with center O. POQ 110, PTQ कितना? अभी बताया था that if the central angle is 110, this will be 70 because angle O plus angle T has to be compulsorily 180 degrees. Therefore, answer is 70. Also, if I join external point and the center, तो 110 के दो टुकड़े हो जाएंगे 55, 55 और सामने जो 70 था उसके दो टुकड़े हो जाएंगे 35, 35 प्लस टेंजेंट रेडियस 90. टेंजेंट एंड रेडियस आर 90. तो कुछ भी पूछ सकते हैं और सब कुछ आसानी से मिल जाता है. नो बिग डील. इनफैक्ट दे कैन आस्क रिफ्लेक्स एंगल POQ. तो POQ एंगल एक्चुअल तो 110 है बट रिफ्लेक्स एंगल POQ मींस 360 में से माइनस कर दो तो बाहर का एंगल 250. इफ टेंजेंट PA PB फ्रॉम अ पॉइंट P to the circle with center O. Circle PA
PB. P is an external point, A is where it touches, B is where it touches. These are the tangents, infinite. Are inclined to each other at angle 80. English language देखो, tangents are inclined to each other at 80. मतलब ये 80 डिग्री है. ओके. What is angle POA? तो पहले O सेंटर ले आते हैं. Join the center and the point and highlight where is POA. This is POA and it is so easy. दो टेंजेंट के बीच का एंगल 80 है तो दो रेडियस के बीच का एंगल होगा 100, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है. 100 is equally divided as 50-50. Therefore angle POA is 50. This is 40, 40, 90, 90. Prove that tangents drawn at the end of the diameter are parallel. Given circle with center O, radius R, diameter AB, tangent L and M. देखो फिगर. सर्कल, diameter AB, center O, tangent L, N, L, M. तो क्वेश्चन क्या है कि डायामीटर के दो पॉइंट्स के ऊपर दो टेंजेंट बनाओ और प्रूव करो कि वो पैरेलल है. टू प्रूव L पैरेलल टू M. Prove that the tangents are parallel. It is so damn easy. See here how. Proof. We know that radius is perpendicular to tangent. Theorem 10.1. Therefore, OA is perpendicular to L and OB is perpendicular to M. Therefore, angle A is 90. Therefore, angle B is 90. तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया. Both are 90-90. Therefore, angle A is equal to angle B. Interior angle on same side of transversal. तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अरे इक्वल क्यों किया मैंने, सॉरी. Therefore, A is equal to B नहीं, एंगल A plus B is equal to 180. And interior angle on same side of transversal are supplementary. मतलब इंटीरियर एंगल का टोटल अगर 180 है, therefore L and M are parallel. ये 9 स्टैंडर्ड लेसन 6 लाइन्स एंड एंगल्स में से है, इसलिए आधों को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बट करना तो पड़ेगा. So L parallel to M and AB is the transversal. The 9th standard concept was something like this कि अगर दो लाइंस है पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के दो एंगल का टोटल हमेशा 180 होना चाहिए. तो यहाँ पे भी वही हो रहा था कि ये दो है और ट्रांसवर्सल है और ये 90, तो टोटल 180 हो रहा है. देयरफॉर L एंड M
are parallel. So it's like this. If parallel, then angle plus angle is 180, और उल्टा if angle plus angle is 180 then they are parallel, and we use that concept to prove L and M are parallel. Prove that the perpendicular at the top at the point of contact to the tangent to the circle passes through the center. Perpendicular at the point of contact, circle, tangent, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मुझे याद है फर्स्ट लेक्चर में इसको मैंने बुलाया था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. इट कैन बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑल्सो. टेक्स्ट बुक प्रेफर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो तुम भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना. हाँ, तो प्रूव दैट परपेंडिक्युलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो परपेंडिक्युलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट એટલે આ રેડ કલરની લાઈન. તો ટેન્જન્ટ ઉપર P પોઈન્ટથી પરપેન્ડિક્યુલર ઊભો કરો તો સેન્ટર એ લાઈન ઉપર આવે છે. સો ગિવન is easy. A circle with center O and radius R, tangent L because it's a line, on a point of contact P. To prove center is on OP, अथवा આપણે એક કામ કરીએ, no, this is okay. To prove the center is on perpendicular of tangent. Proof. Before giving the proof, we will give a little bit of ज्ञान. जो एक फैक्ट हमें पता है वो फैक्ट हम मेंशन करते हैं. L is tangent, P is point of contact, O is center. So when L is the tangent, P is the point of contact and O is the center, OP is radius and OP is perpendicular to L. ये है थियरम 10.1 जो मैं कभी भी कहीं भी मेंशन कर सकता हूं. सो OP is perpendicular to L. अब जो प्रूव करना है उस पर फोकस करते हैं. ड्रॉ XP such that XP is the perpendicular drawn on tangent at point P. पहले केस में क्या था, सेंटर और P को सिर्फ ज्वाइन किया था, 90 डिग्री अपने आप बन गया था, एंड दैट इज थियरम 10.1. बट इस बार हमने एक्चुअल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंड दैट एक्चुअल परपेंडिकुलर विल बी शोन समथिंग लाइक दिस. हाँ, टेढ़ा. नाउ फ्रॉम 1, ये जो पहला सेंटेंस था ब्लैक कलर का उसको 1 लिखो. फ्रॉम 1 एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू 90. पहला ब्लैक सेंटेंस है
कि O और P को ज्वाइन करो तो OP में P एंगल 90 होता है, और यहाँ पे M है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग द एंगल OPM 90 फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम टू XP परपेंडिकुलर हमने खुद ड्रॉ किया है, सो XPM is also equal to 90. Therefore, point X and point O are the same. Point X और O सेम ही है. Therefore, X belongs to perpendicular of tangent, क्योंकि हमने ऐसे ड्रॉ किया था. Therefore, O belongs to perpendicular of tangent. ओवर. और ये ओवर का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज ये थियोरेटिकल है, थियरम जैसा है, तो जो लिखा है और जो फिगर है वो दोनों बाय हार्ट करना पड़ेगा. मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं समझाने की. सर्कल, टेंजेंट. थियरम 10.1 कहता है कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टच करा दो तो एंगल 90 होता. सेंटर को P से टच करा दो. But this time we have to prove that for a circle and a tangent, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, अगर ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो तो सेंटर उस लाइन पे आता है. सो सेंटर बिलोंग्स टू दिस लाइन. सो व्हाट वी सेड बाय गिविंग थियरम 10.1, we said angle P is 90. Precisely, the word was angle OPM 90. फिर हमने टेंजेंट का परपेंडिकुलर बनाया और उसको पॉइंट X नाम दे दिया कि XPM परपेंडिकुलर है तो एंगल XPM भी 90. Therefore, X and O are the same points. और X तो परपेंडिकुलर पे था इसलिए O भी परपेंडिकुलर पे है. So this is just play of words, nothing else. The length of the tangents from point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Circle, tangent, radius, center, point A and joining it. This is 90 degree. The length of the tangent from point A at a distance 5 cm from center का मतलब है OA 5 cm is 4 cm. Again, very difficult language. Length of tangent is 4. तो मेहरबानी करके क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ना. They have very confusing English language in your textbook. So length of tangent is 4 and point A at a distance of 5 cm from center. अब sum ready है. Find the radius. कुछ नहीं, पाइथा करना है. And when you do Pythagoras for a triangle whose hypo is 5 and one side is 4, your answer will be 3. Two concentric circles are of radius 5 and 3.
concentric circle means one inside the other. So two concentric circles are of radius 5 and 3. Find the length of the chord of large circle which touches the small circle. Chord of large circle which touches the small circle is something like this. A, B. So AB is the chord of large circle which touches the small circle. अब सेंटर है, छोटे का टेंजेंट है ये, पॉइंट पी पे टेंजेंसी है. What will happen if I join the center and the point of tangency or point of contact? It will be 90. You have to say that draw perpendicular from O on AB. AB is tangent of circle with center O and radius 3. Therefore, OP is perpendicular to AB, angle P 90. तो एंगल P 90 है, उतना जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा. फिर OB बड़ा रेडियस है 5, OP छोटा रेडियस है 3. OB is equal to 5 सेंटीमीटर बिग रेडियस, OP is equal to 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल का स्मॉल रेडियस. और एंगल 90 तो प्रूव किया ही है, इसका मतलब ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी बी, जिसमें OP है छोटू का रेडियस, OB है मोटू का रेडियस और PB फाइंड करना है. पाइथा करो, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा. PB इज 4 एंड PB 4, तो AB भी 4. उसकी एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है, दैट AB इज कॉर्ड एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB. देयरफॉर P बाइसेक्ट AB. ये 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है कि एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो हमेशा मिड पॉइंट टच करता है और वो मिड पॉइंट P है. देयरफॉर P बाइसेक्ट AB. Therefore AP is equal to PB और PB तो 4 आया पाइथा करके. Therefore final answer, the length of the chord AB is 8 units. Quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is AD plus BC. So simple. You have to start from writing a statement. We know that the length of the tangents from an outside point to the circle are always equal. बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो D से DR एंड DS आर इक्वल. DR इक्वल टू DS. A से शुरू करते हैं, ABCD है, सो A से दो टेंजेंट आर इक्वल, AS AP. D से DS DR. अरे वापस डी, सॉरी बी लेते हैं, ए फिर बी. तो बी से BP BQ, सी से CQ CR,
और डी से डी आर डी एस. Add all these four equations. AS plus BP plus CR plus DR. AS DR DS. DR इज इक्वल टू DS की जगह पे ओके वेट. I am starting over because there has to be a particular strategy of writing down the same tangents. तो तुम क्या करोगे, वो strategy पहले से decide कर लोगे. You have to show AB plus CD is equal to AD plus BC. लेफ्ट हैंड साइड में AB है, AB प्लस CD, तो ये दोनों लेफ्ट साइड पे है और बाकी दोनों राइट साइड पे. सो LHS and these two RHS. तो पहले से ये डिसाइड करके रख दो मेंटली and then start writing what I had written earlier, that we know length of tangents are equal from an external point. Therefore, तो A से जब दो टेंजेंट लिखोगे AP AS, तो you know what to write on the left side. AP is equal to AS. B से BP BQ left right, BP BQ. C से CQ CR are equal, बट लेफ्ट साइड पहले लिखना है CR CQ. और D से DR DS आर इक्वल, बट लेफ्ट हैंड साइड मतलब DR में लिखना है DR DS. नाउ एड एवरीथिंग. AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ. मैंने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया, वो है DS को पहले लिख दिया और कुछ नहीं. तो इसका फायदा क्या हुआ, that instantly AP plus BP becomes AB. Look at the figure. AP BP. CR plus DR becomes CD. AS DS becomes AD. BQ CQ becomes BC. Hence proved AB plus CD is AD plus BC. तो बस ये LHS RHS का ध्यान रखना तो इजी हो जाएगा, वरना पहले जैसी गलती होगी कि मैंने बिना सोचे समझे लिख दिया था तो अरेंजमेंट गलत हो जाता है. मैथमेटिकली इट इज करेक्ट कि दिस इक्वल टू दिस, बट अरेंजमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ दैट. XY and X dash Y dash are two parallel tangents to the circle with center O, and another tangent AB with a point of contact C is intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that. इसको हटाओ. XY X dash Y dash two parallel tangents. Wow, better. Okay. XY
x dash y dash, two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C. Another tangent AB sorry. Another tangent, point of contact C, and tangent is AB. Intersect xy at A, x dash y dash at B. Prove that AOB 90. AOB है कहाँ? AOB को 90 प्रूव करना है. तो जितना अच्छे से खुद फिगर बनाओगे तुम्हारा मैथ सुधरेगा. रेडीमेड फिगर की आदत डालना मत, भूल से भी नहीं दिया तो फंस जाओगे. हाँ भाई, प्रूव दैट it is 90. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या दिया है? PQ टेक्स्ट बुक में PQ. ओके, Number 1, AP is equal to AC. Reason: tangents from A are equal. A से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, देखो AP AC. तो ये पहला पार्ट हुआ. OP is equal to OC, रेडियस. ये OP OC जो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मत करो तुम भी. OP OC सेम. एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, दोनों 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90-90. Therefore, what I tried to do is prove that these two triangles are congruent. 9th स्टैंडर्ड के टेक्निक यूज की और RHS थियरम से कॉन्ग्रुएंट हो गया. कौन सा ट्राइंगल? APO ACO. APO ACO सेम का फायदा क्या हुआ? That now I can use CPCT and say that this angle and this angle are same. X, X. So इतना लिखने के बाद therefore angle PAO is equal to CAO is equal to small x. CPCT. X, X. फिर सिमिलरली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अगेन, सीधा सिमिलरली ये वाई वाई सेम होंगे. यहां पे भी दो ट्राइंगल है, बट यू डोंट हैव टू प्रूव द ट्राइंगल सेम. सो सिमिलरली एंगल CBO is equal to QBO is equal to Y. अब सेकेंड पार्ट, XX YY ले लिया. सेकेंड पार्ट, XY पैरेलल टू X dash Y dash and AB ट्रांसवर्सल. 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 6. तो XY is parallel to X dash Y dash and AB transversal. तो can I say the full angle A and full angle B are supplementary?
Reason, interior angle on same side of transversal. Therefore, angle A plus angle B is 180. Interior angle on same side of transversal. But A is 2x, B is 2y is 180, तो x प्लस वाई इज 90. ये हो गया सेकेंड. तो पहले एक्स एक्स वाई वाई, फिर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल करके एक्स प्लस वाई 90. अब तुमको जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है उसको ड्रॉ करो. द ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट इज ए ओ बी, जिसमें ये है सिंगल एक्स, ये है सिंगल वाई और ये है क्वेश्चन मार्क. सो एंगल ए बी एंड ओ 180, x y o 180, बट x प्लस वाई तो 90 है. एंगल ओ 180 और वो एंगल ओ है एंगल ए ओ बी, विच दे हैड आस्क्ड टू प्रूव. एंगल ए ओ बी 180. So there are three phases which I am going to revise quickly from this textual diagram. It's not a difficult sum. You start the sum by saying or comparing two triangles APO ACO, और ये दो ट्राइंगल को हाँ सॉरी, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तो मिलेगा दैट दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल x x. Similarly, this angle and this angle are same y y. Also, C बन रहा है interior angle on same side of transversal 2x plus 2y is 180, therefore x plus y is 90, and therefore in the main triangle AOB एक x और एक y का टोटल 90 है, तो ये 90 ही होगा. Prove that angle between the two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center. पहले तो एक सर्कल और दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो. पॉइंट P, tangent PA, PB, arrow, arrow, center O. Prove that angle between the two tangents, ये एंगल की बात चल रही है, angle between the two tangents drawn from an external point P to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. Line segment joining the point of contact मतलब AB. An angle subtended by AB 9 standard angle AOB. और इसके साथ सप्लीमेंट्री है वो प्रूव करना है जो मैंने पहले कहा था कि ये तो रूल है. तो अब उसका प्रूफ दैट भी देख लेते हैं. Proof. Radius is perpendicular to tangent. Theorem 10.1. Therefore, OA is perpendicular to PA. OB radius is perpendicular to PB. मतलब एंगल A 90,
एंगल बी 90। ये तो अब कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज बन चुका है तुम्हारे लिए। तो ध्यान से देखो, तो ओ ए बी पी क्या है? ओ ए बी पी इज अ क्वाड्रिलैटरल, और ये क्वाड्रिलैटरल में एंगल ओ प्लस ए प्लस बी प्लस पी इज 360, बट ए तो 90 है, बी भी 90 है, और 90 90 सामने माइनस हो जाएंगे, एंगल ओ प्लस पी इज इक्वल टू 180। बट एंगल ओ मतलब एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर, ए ओ बी, और एंगल पी मतलब एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ए पी बी। तो वही तो प्रूव करना था। इट्स अ वेरी इजी सम। प्रूव दैट angle between the tangents and angle at the center are supplementary. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. ये फैक्ट भी है कि सर्कल के इर्द गिर्द तुम कोई भी पैरेललोग्राम चिपकाने की कोशिश करो तो वो रोम्बस है। Of course this doesn't look like rhombus, but this is how you'll have to draw. I will grab one from online resource. This is a better figure. We have to prove ABCD is rhombus, and it is given that ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram तो है, बट उसको rhombus प्रूव करना है और वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सो गिवन पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle at point, circumscribe मतलब टच करना, तो टचिंग एट पॉइंट P Q R S respectively. To prove parallelogram ABCD is rhombus. तुम खुद सोचो, 9th स्टैंडर्ड में था चैप्टर के रोम्बस प्रूव कैसे कर सकते हैं, ऑल साइड सेम बता के। और ऑल साइड सेम कैसे बताने का पहला पड़ाव, वी नो दैट टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो सेम है। देयरफॉर AP AS सेम, PB BQ सेम, QC CR और ये भी सेम, 3 और यहाँ पे 4। इसको एक पर्टिकुलर फैशन में लिखो, ऊपर नीचे वाले लेफ्ट साइड पे AP AS BP BQ CR CQ DR DS। ये हो गया 1। अब इट इज गिवन दैट इट्स अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। Therefore, can I say AB is equal to CD and AC is equal to BD? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर सेम, बट AB के दो टुकड़े करो, AP प्लस PB,
और सी डी के 2 टुकड़े करो, की जरूरत नहीं है। सी डी सी डी सी डी, नहीं है जरूरत। तो सिर्फ ए बी के 2 टुकड़े करो, ए पी एन पी बी। अब ए पी ए एस है, आ, नहीं, सी डी add all the 4, नहीं। So as I was thinking, you will again have to add everything. पैरेललोग्राम तक ठीक है। अब ये जो 4 है इनको ऐड करो। सो ए पी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस डी एस, ए पी बी पी ए बी, सी डी डी आर सी डी, ए एस डी एस ए डी, बी क्यू सी क्यू बी सी। तो ये 11 सम है, उसमें अब तक हमने 10th सम ही डिट्टो किया है। दिस इज 10th सम विच वी जस्ट डिड, 10th भी नहीं, ये रहा 8th sum. In 8th sum we had proved that sum of opposite sides are equal if it's a cyclic quadrilateral. तो सेम सम तक पहुंच जाओ और फिर पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करो। पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी सी डी, ए सी बी डी नहीं आएगा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर सेम। सो ए बी सी डी, बी सी डी ए, तो बी सी को डी ए बना दो, ए डी डी ए, सी डी टू सी डी, ए डी टू ए डी, so CD is equal to AD. Now parallelogram tells you AB is equal to CD, but CD is equal to AD, but AD is equal to BC. Therefore all sides are same. So AB is equal to CD comes from parallelogram concept. BC is equal to AD comes from parallelogram concept, and CD is equal to AD comes from what we derived. तो इसका मतलब है AB, CD, AD, BC सब सेम, therefore all sides same, therefore it's a rhombus. So remember, partly it is sum number 7 and then it changes, तो 5 स्टेप में आंसर आ जाता है। Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4. Figure is given but the radius 4 was not given. Such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6.
दिया हुआ 8 and 6. Find the sides AB and AC respectively. In short, कहना ये चाहते हैं, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कल है. सर्कल जहाँ टच करता है वहाँ से एक तरफ 6 है, दूसरी तरफ 8 है और रेडियस 4 है. वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग साइड्स AB and AC. We know that tangent from external points are same. तो CD अगर 6 है तो ये भी 6. तो ABCDEF. BD 8 है तो BE भी 8. Tangents are same. And AF AE are also same. X X. And we have to try to find out X. X मिल गया तो साइड AB और AC मिल जाएगी. The strategy to do that is join ABC with the center O of the triangle or the circle. Can you see 3 triangles created by the red lines? The 3 triangles are AOC, AOB, and COB. A, C, B, O. Every radius is perpendicular to tangent. तो BC एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है और ये रेडियस है, therefore this is 90. ये भी रेडियस है, दिस इज 90 एंड 4. दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए बी एक टेंजेंट है तो ये 90 होगा एंड 4. What is the length of side BC? 6 plus 8, 14. AB, x plus 8. AC, x plus 6. What is the area of AOC? Half base altitude, मतलब 2x plus 6. ये ऑल्टीट्यूड है ट्राइंगल का. तो ट्राइंगल AOC का एरिया हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, ट्राइंगल AOB का एरिया हाफ बेस ऑल्टीट्यूड 2x plus 8 एंड BOC का एरिया हाफ बेस ऑल्टीट्यूड 28. तो तीनों का एरिया टोटल करो तो ABC के साथ मैच होना चाहिए क्योंकि उसी ट्राइंगल में से 3 टुकड़े किए थे. नाउ वी विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. ट्राइंगल ABC, ओके ACB है टेक्स्ट बुक में तो वैसे रखते हैं ACB. AC की लंबाई x plus 6, AB की लंबाई x plus 8
BC की लंबाई 14. हेरॉन्स फार्मूला में, सो द सेकेंड फेज स्टार्ट्स नाउ. हेरॉन्स फार्मूला में पहले सेमी पेरीमीटर इज साइड 1 प्लस साइड 2, जहां पे ये 8 होगा, प्लस साइड 3 डिवाइडेड बाय 2. 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2. 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 14. एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड माइनस सेकेंड साइड माइनस थर्ड साइड. S मतलब x प्लस 14. x प्लस 14 में से x प्लस 6 माइनस करो तो x खत्म हो जाएंगे. 14 माइनस 6 8. x प्लस 14 में से x प्लस 8 माइनस करो 6, और x प्लस 14 में से 14 माइनस करो x. एंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो. 8 6 48 x प्लस 14. तो हेरॉन्स के हिसाब से ABC का एरिया ये आना चाहिए, रूट ऑफ 48 x प्लस 14. बट 3 एरिया का टोटल करो तो कुछ और आएगा. सो ऑन वन साइड वी विल राइट एरिया ऑफ ABC फ्रॉम द हेरॉन्स, रूट ऑफ 48x प्लस 14 is equal to 2x प्लस 12 पहले का एरिया, प्लस 2x प्लस 16 दूसरे का एरिया, प्लस 28 itself. रूट 48, रूट के टुकड़े कर दो. रूट 48 रूट x प्लस 14 is equal to 2x 4x 12 plus 16 28 plus 28 56. रूट 48 को सिंप्लीफाई करो तो 4 रूट 3 होता, और 4x प्लस 56 में से 4 कॉमन, x प्लस 14. 4 कट, यहां पे x आएगा. रूट 3 रूट x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14. x प्लस 14 के अंदर 2 रूट्स है, तो एक रूट अगर मैं कट कर दूं तो एक रूट x प्लस 14 बच जाएगा. सो रूट 3 रूट x इज रूट x प्लस 14. अब तीनों में रूट है तो रूट गायब हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, x इज इक्वल टू 7. ये फर्स्ट टाइम में आने वाला सम नहीं है, बट 2-3 बार करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा. तो पूरे सम की स्ट्रेटेजी देखो. इफ देर इज अ ट्राइंगल inside which there is a circle and they are asking the two sides, तो ये प्रोसीजर करने की. डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 3 पार्ट्स और तीनों 3 का हाफ बेस ऑल्टीट्यूड रेडी करके रखो. ऑन द अदर साइड डू हेरॉन्स फॉर्मूला और उसका एरिया रेडी करके रखो. और हेरॉन्स का एरिया और तीनों का टोटल का एरिया कंपेयर करने की स्टाइल से x7 आ जाता है. The minute you get x7, your sum is over, because now you can put 7 here and say that AC is equal to 13 and AB is equal to 15. Prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. Quadrilateral circumscribing a circle
और क्वाड्रिलैटरल का कोई शेप नहीं बताया है, सो हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट टचिस द सर्कल। टच तुम लोग स्केल से करोगे तो अच्छा आएगा। आई हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ गेस वर्क। So quadrilateral A, B, C, D circumscribes a circle. Prove that opposite side subtend supplementary angles at the center. एक एक वर्ड देखते। ऑपोजिट साइड्स मतलब BC और AD। subtend angle at the center, this is the angle subtended by BC at the center, and this is the angle subtended by AD at the center. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, सेम नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव? प्रूफ we know that line joining B नहीं A लेते हैं, line joining A and O bisect the angle between two tangents AB and AD। तो इस लेक्चर का सबसे पहला 30 सेकेंड्स में जो फिगर बनाया था और समझाया था कि कौन से दो एंगल सेम, ये उसी को एक सेंटेंस में बता रहा है। दैट वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ओ बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। देयरफॉर लेट एंगल BAO is equal to DAO is equal to X. Similarly, choose Y, Z, W. तो A में X, B में Y, C में Z, D में W। और क्यों ये सारे सेम है वो एक बार फिर से समझा दूं कि कोई भी सर्कल में एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट सेंटर से ज्वाइन कराओ तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये 90-90 है और इंटरनल वाले दो एंगल भी सेम है। तो x x y y z z w w आ गया। Now it is very simple. Choose triangle BCO. BCO. Angle B plus C plus O is 180. तो एंगल O कितना आया? 180 माइनस y माइनस z। नीचे का ट्राइंगल चूज करो, एंगल OAD, एंगल OAD, A प्लस D प्लस O इज 180, तो एंगल O आया 180 माइनस x माइनस W। हमें प्रूव करना है that these two angles are supplementary। ये वाला O इधर है, ये वाला O नीचे है, इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, मतलब ऐड बोथ ऑफ देम। देयरफॉर एंगल BOC प्लस
एंगल AOD BOC 180 minus y minus z, AOD 180 minus x minus w, मतलब 360 माइनस एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब 360 माइनस कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब 360 माइनस 2 मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को और 2 डिवाइड भी कर दो। क्यों किया ऐसा? बिकॉज केयरफुली सी, 2x 2y 2z 2w और ये सारे दो 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 का टोटल 360 होगा, बिकॉज क्वाड्रिलैटरल टोटल इज 360। सो 2x 2y 2z 2w इज 360। तो मैं 2 लेके आ गया, 2x 2y 2z 2w और ये 2 नीचे रहने दो, that becomes 360. Therefore 360 minus 360 by 2, 360 minus 180, 180. Hence proved कि दोनों एंगल O का टोटल 180 है। Let me import a neat diagram and revise quickly. So the question was, prove that when a quadrilateral circumscribes a circle, opposite sides, तो मैंने लिया था BC और AD, subtends angle at the center, तो ये 1 और AD subtends 2। और प्रूव करना था 1 + 2 is 180। प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और वो प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा, दैट व्हेन 2 टेंजेंट्स आर देयर द 2 एंगल्स आर इक्वल। सो XX YY ZZ WW। और नीचे के ट्राइंगल का ये एंगल कैलकुलेट किया 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ऊपर का 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड, एंड आई एडेड दैट 1 की जगह 180 माइनस एक्स माइनस 1 की जगह 180 माइनस डब्ल्यू जेड, 2 की जगह 180 माइनस एक्स वाई, 180 180 360 माइनस एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूरे क्वाड्रिलैटरल का आधा है, तो सम प्रूव हो जाता। So that's the end of the textbook sums. Thank you.